the capital and revenue expenditure. Capital and revenue expenditure. Now, when a business pays something or receives something, so we write that in the cash book. किस में लिखते हैं हम उसको? Cash book में लिखते हैं. All the receipts are entered in the cash book and all the payments are entered in the cash book. Receipts on the debit side and payments on the credit side. ऐसे ही करते हैं and it is one of the book of the prime entries. अब जब हम उनको receipts पे लिख रहे हैं and all the payments on the credit side, we don't differentiate between these receipts and payments कि ये कौन सी receipts हैं, कौन सी payments हैं, हम उसको differentiate ही नहीं करते कि ये क्या है. सब एक साइड पे आ रही है डेबिट साइड पे, सब एक साइड पे आ रही है क्रेडिट साइड पे. बट they need to be categorized. They need to be categorized. उनको categorize करना है because some transactions need to be transferred to income statement and some transactions need to be transferred to balance sheet. ठीक है? Some transactions need to be transferred to income statement and some transactions need to be transferred to balance sheet. Which are the items which will be transferred to income statement and which are the items which need to be transferred to the balance sheet? All the revenue items are related to income statement. All the revenue items are related to income statement. ठीक है? And all the capital items are related to balance sheet. या statement of financial position. All the revenue items are transferred to income statement and all the capital items are transferred to balance sheet. For that purpose, we need to differentiate between the items which are the items which will be going to the income statement and which are the items which need to be transferred to the balance sheet. ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर है कि हमने इनको differentiate करना क्यों. Now, for differentiating these, we have to categorize between capital expenditure and capital receipt, revenue expenditure and revenue receipt. So there are certain criteria जिसको अगर कोई expense fulfill करेगा, that expense will be transferred to balance sheet or that will be categorized as your capital expenditure. ठीक है? तो सबसे पहले capital expenditure को देखते हैं. Any expense done to buy fixed asset. अगर हम ऐसा expense कर रहे हैं which is done to buy fixed asset, हम fixed asset purchase करते हैं, that will be added in the बैलेंस शीट. हम फिक्स एसेट खरीदेंगे, वो बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगा हमारे पास नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में. नंबर 2, any expense done to increase the value of existing asset. If you are doing some expense which will increase the value of an existing asset, for example हमारे पास एक हमारा घर है, बिल्डिंग है हमारे पास, हम उसमें लिफ्ट लगवा लेते हैं, एलिवेटर लगवा लेते हैं, तो क्या होगा? उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, कम होगी? बढ़ जाएगी. तो it is an existing asset. Existing asset है, हमने उसके अंदर एक लिफ्ट लगा दी तो उसकी वैल्यू बढ़ गई. हमारा घर है, हमने उसके अंदर सेंट्रली एयर कंडीशन करा लिया, उसकी वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? So any expense done to increase the value of an existing asset, कोई existing asset है, asset तो खुद से capital expenditure, लेकिन अगर हम उसके ऊपर ऐसा कोई expense कर रहे हैं which will increase its value, that will be termed as capital expenditure. And remember that capital expenditure will be added in the cost of that asset. अगर मेरा for example घर जो है वो 100,000 का है, 10,000 की लिफ्ट लगी तो 110 का हो जाएगा. So that expenditure which will increase the value of asset will be added in the cost of the asset. Understand कर रहे हैं बात को? ठीक है? आपके पास गाड़ी है, उसमें alloy rim लगा लिए बहुत अच्छे किस्म के, ठीक है? तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी कम होगी? Definitely बढ़ेगी ना. So that will add to the cost of the car. गाड़ी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी कि नहीं ऐड हो जाएगी? So if we do an expense which will increase the value of an existing asset, that will be added in the cost of the asset. ठीक हो गया? And it will be termed as capital expenditure. Number 3, any expense done to increase the production capacity or the carrying capacity. हमको expense करते हैं, ठीक है? And that expense will increase the production speed or the production. For example, if a factory is producing 100 units per day, हमने उसके अंदर कोई मशीनरी इंस्टॉल की, कोई इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किया, कोई भी ऐसी चीज़ इंस्टॉल की जिससे उसकी प्रोडक्शन 100 से 110 हो गई, तो इसका मतलब है कि it will increase the production of the factory. तो वो क्या होगा हमारे पास? कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा. हमारे पास एक स्टोर है, ठीक है? हमारे पास एक वेयर हाउस है, स्टोर है, हम उसमें एक शेल्फ और डाल लेते हैं, तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ जाएगी ना. सो दैट एक्सपेंस विल बी कैपिटल एक्सपेंस और वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे ऐड हो जाएगा. कैपिटल एक्सपेंस उसकी कॉस्ट पे तो होगी ना. हाँ, तो वेयर हाउस कॉस्ट है ना,
अंदर वो ऐड हो जाएगा। अब वेयर हाउस कॉस्ट फॉर एग्जांपल 5 लाख की कॉस्ट है वेयर हाउस की, 50,000 का उसकी शेल्विंग का एक्सपेंस है तो वो 550 का हो जाएगा। ठीक है, सो एनी एक्सपेंस डन इन कनेक्शन व्हिच विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट और व्हिच विल इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ दैट एसेट, इट विल बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट। ठीक है, कैपेसिटी फॉर एग्जांपल एक मोटर होती है, मोटर मशीन, ठीक है, वो आगे और बहुत सी मशीनरी को चला रही होती है। अगर आप उसको हाई स्पीड वाली ले आएंगे ताकि बाकी का प्रोसेस फास्ट हो जाए तो चीज़ें फास्ट होंगी, प्रोसेस फास्ट होगा। तो अगर आप ऐसी कोई चीज़ इंस्टॉल करते हैं जिससे हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज करती है तो वो हमारा कैपिटल है, वो मोटर हमारा कैपिटल एक्सपेंस हो जाएगा। समझ आ रही है बात? ठीक है, इफ वी रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग मोटर विद अनदर मोटर, वो कैपिटल एक्सपेंस नहीं होगा, वो रिप्लेसमेंट, वो भी हम आगे पढ़ते हैं, वो रेवेन्यू होगा और आप उसी चीज को मेंटेन कर रहे हैं, यू आर नॉट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एनीथिंग। ठीक है, यहां तक बात समझ आती है? थर्ड पॉइंट तक। नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी एक्सपेंस डन टिल द एसेट इज इन वर्किंग कंडीशन। जब तक कि एसेट अपनी वर्किंग कंडीशन में नहीं आ जाता उस वक्त तक के किए हुए जितने भी एक्सपेंडिचर्स होंगे दैट विल बी टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक मशीनरी परचेज करते हैं, जर्मनी से लाते हैं, उसकी कॉस्ट वहां से उसके वेयर हाउस से लेकर एयरपोर्ट तक या सी पोर्ट तक आने की कॉस्ट, कैरेज, लोडिंग अनलोडिंग, फिर जहाज पे होगी वहां की कैरेज, लोडिंग अनलोडिंग, पाकिस्तान पहुंची कराची पोर्ट। ठीक है, वहां पे कैरेज, लोडिंग अनलोडिंग, इस्लामाबाद तक लेके आने का, फिर कैरेज, फिर लोडिंग अनलोडिंग होगा ना, चढ़ाएंगे, लोडिंग, फिर अनलोडिंग, फिर उसके बाद हमारी फैक्ट्री में आके वहां पे उसको असेंबल करने की कॉस्ट, असेंबल होगी ना मशीनरी, ठीक है, असेंबल करने के बाद उसकी टेस्टिंग की कॉस्ट। जब तक कि वो मशीनरी अपना काम नहीं शुरू कर देती, अपना इंटेंडेड काम नहीं शुरू कर देती, टिल द एसेट स्टार्ट्स वर्किंग व्हाट इज इट्स इंटेंडेड वर्क, उस वक्त तक के किए हुए जितने भी एक्सपेंडिचर्स होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होंगे और वो उसकी कॉस्ट में ऐड होंगे, और वो उसकी कॉस्ट में ऐड होंगे। वहां से जर्मनी की मशीनरी वहां से चली, कॉस्ट, लोडिंग अनलोडिंग, फिर यहाँ पे आई लोडिंग अनलोडिंग, कैरेज, फैक्ट्री में पहुंची, वहां पे असेंबल करने की टेस्ट, जब वो अपना काम शुरू कर लेगी उसके बाद जितने एक्सपेंडिचर्स होंगे वो मेंटेनेंस में आएंगे, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन टिल द एसेट इज इन वर्किंग कंडीशन इट विल बी टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल हम घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, मटेरियल, जितना मटेरियल आ रहा है वो कितना ऐड होगा उसकी कॉस्ट में, जितनी लेबर देंगे ऐड होगा, जो कुछ लगेगा उस घर के अंदर, जब तक कि हम उस घर में जाके रहना नहीं शुरू कर देते, हम उसकी टोटल कॉस्ट ऐड करते हैं ना, लेबर को इतने पैसे दिए, मशीनरी आने पे इतने पैसे दिए, ट्रक आया, जितनी भी कॉस्ट इन्वॉल्व होंगी सब उसकी कॉस्ट में ऐड हो रही होगी। सो एट द एंड जब हम उसमें शिफ्ट होते हैं या वो कंप्लीशन स्टेज पे नहीं आ जाता, तब तक के किए हुए जितने भी एक्सपेंसेस हैं दैट विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम एक गाड़ी परचेज करते हैं शोरूम से, लेते हैं गाड़ी शोरूम से, वहां से भी उसकी इनवॉइस आ गई, वो क्या होगी? उसकी कॉस्ट। ठीक है, उसको वहां से लेके आएंगे, ठीक है, उसकी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उस पर नंबर लगाएंगे और उसके अंदर कोई काम कराना है, जब तक कि वो रोड पे नहीं आ जाती उस वक्त तक के जितने भी किए हुए उसके ऊपर एक्सपेंसेस हैं वो सारे क्या होंगे? कैपिटल एक्सपेंसेस। सारे क्या होंगे? कैपिटल एक्सपेंसेस। हम एक घर परचेज करते हैं, प्लॉट परचेज करते हैं, वो रजिस्ट्री कराते हैं ना, होता है ना, रजिस्ट्री कराते हैं, डॉक्यूमेंट जो हमारा गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है उसको रजिस्ट्री करते, उसके करने का एक्सपेंस वकील को दिए, जो भी उसके लिए एक्सपेंस करेंगे टिल द एसेट इज योर्स, जब तक कि वो आपकी पोजीशन में नहीं आया था उस वक्त तक के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे, दैट विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ आ रही है बात की? सो इफ वी बाय एसेट, फिक्स्ड एसेट, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी और द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन एसेट, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड एनी एक्सपेंस डन टिल द वर्किंग कंडीशन, एसेट अपनी वर्किंग कंडीशन में नहीं आया, दैट विल बी टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इज दैट थिंग क्लियर? नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, as explained you earlier कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां पे जाएंगे? इनकम स्टेटमेंट में जा रहे होंगे। सो इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास क्या आते हैं? एक्सपेंसेस। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर डन फॉर द नॉर्मल डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस की नॉर्मल डे टू डे रनिंग के लिए हम एक्सपेंस यूज करते हैं, दैट विल बी टर्म्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एनी एक्सपेंस डन फॉर द नॉर्मल डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस लाइक सैलरीज, रेंट, इंश्योरेंस, यूटिलिटीज, रिपेयर्स, रीडेकोरेट, मेंटेन। ठीक है, हम फर्स्ट टाइम अपने घर को पेंट करते हैं, क्या होगा? इट विल बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकंड टाइम अपने घर को पेंट करेंगे, इट विल बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज यू आर
मेंटेनिंग। मेंटेनेंस किस में आएगी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, मेंटेनेंस किस में आएगी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने फर्स्ट टाइम गाड़ी परचेज की, फर्स्ट टाइम रोड टैक्स देते हैं ना गाड़ी का, ठीक है, जिसको हम टूल क्या कहते हैं उसको, मोटर टैक्स को क्या कहते हैं, टोकन लगवाते हैं उसका, ठीक है। तो वो फर्स्ट टाइम आप टोकन लगवाएंगे, दैट विल बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ द कार। लेकिन जब दोबारा नेक्स्ट टाइम उसको अगले साल फिर लगाएंगे तो वो रेवेन्यू में आ जाएगा, बिकॉज यू आर मेंटेनिंग। सो एडिशनल कॉस्ट के बाद जो भी एक्सपेंस आएगा उस चीज का तो वो रेवेन्यू अब फॉर एग्जांपल अभी बताया था कि अगर आप एक मोटर इंस्टॉल करते हैं जिससे किसी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है तो वो तो कैपिटल है। लेकिन अगर वही मोटर आप रिप्लेस कर देते हैं, वो खराब होगी, नहीं लगा दी, लगाई तो नहीं, नया एसेट परचेज किया, बट इट विल बी रेवेन्यू बिकॉज यू आर मगर उसकी कीमत अगर बढ़ जाए बिकॉज यू आर, क्यों नहीं होगा? बेशक कीमत बढ़ जाएगी लेकिन कैपेसिटी तो नहीं बढ़ेगी, प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ेगी, उसकी प्राइस बढ़ गई तो इससे हम क्या कर सकते हैं? इन्फ्लेशन की वजह से एनी एक्सपेंस डन टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एन एक्जिस्टिंग जी एसेट, वो कैपिटल होता है। हाँ ना, मोटर महंगी होगी, इसकी वैल्यू तो नहीं बढ़ी ना, ठीक है। अब डॉलर महंगा हो गया तो डॉलर की वैल्यू तो नहीं बढ़ेगी, वो तो इन्फ्लेशन से महंगा हो गया ना, ठीक है। ओके, कैपिटल रिसीट, ऑल द रिसीट्स व्हिच आर रिसीट्स फ्रॉम सेलिंग अ फिक्स्ड एसेट, जब हम कोई फिक्स्ड एसेट सेल करते हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो हमें पैसे मिलेंगे दैट विल बी टर्म्ड एज कैपिटल रिसीट, ठीक है। एनी रिसीट फ्रॉम सेलिंग अ नॉन करंट एसेट, फॉर एग्जांपल हम बिल्डिंग बेचते हैं, मशीनरी बेचते हैं, इक्विपमेंट बेचते हैं, उससे जो हमें पैसे मिलेंगे दैट विल बी टर्म्ड एज कैपिटल रिसीट। एंड रेवेन्यू रिसीट, एनी रिसीट जो हमें रिसीट होगी, जो हमें पैसे आएंगे फॉर द नॉर्मल डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस, लाइक रेवेन्यू, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, जो भी हमें बिजनेस के नॉर्मल डे टू डे रनिंग से जो पैसा आएगा दैट विल बी रेवेन्यू रिसीव्ड। तो क्या चीजें होगी चार हमारे पास? कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बैलेंस शीट से रिलेट करता है, एनी एक्सपेंस डन टू बाय फिक्स्ड एसेट, एनी एक्सपेंस व्हिच विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्जिस्टिंग एसेट, एंड एनी एक्सपेंस डन टिल द एसेट इज इन वर्किंग कंडीशन दैट विल बी टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एनी एक्सपेंस फॉर द नॉर्मल डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस विल बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिक्स्ड एसेट सेल करेंगे, जो पैसे आएंगे वो कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट जो नॉर्मल डे टू डे बिजनेस से हमें पैसे आएंगे वो दैट विल बी रेवेन्यू रिसीट। इज दैट थिंग क्लियर? सिंपल एक तो एक्सरसाइजेस करते हैं और इसी टॉपिक को फिनिश करेंगे आज। नाउ 24.2 जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि ये कैपिटल है या रेवेन्यू, ठीक है। ओके, नंबर 1 परचेज ऑफ न्यू वैन, कैपिटल और रेवेन्यू? कैपिटल। नंबर बी परचेज ऑफ रिप्लेसमेंट इंजन फॉर एग्जिस्टिंग वैन, रेवेन्यू। रेवेन्यू। परचेज ऑफ रिप्लेसमेंट, हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं, उससे ना तो कैपेसिटी बढ़ी है, ना उसकी प्रोडक्शन बढ़ी है, ना हाँ, तो वैन एग्जिस्टिंग है ना। मैंने अभी आपको कहा जब आप किसी चीज को मेंटेन करेंगे दैट विल बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑलरेडी गाड़ी में टायर है, मैं नए टायर डलवाता हूं तो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, वी आर मेंटेनिंग। अनलेस एंड अंटिल वो टायर उसकी स्पीड बढ़ा दें, उसकी कैपेसिटी बढ़ा दें या कोई और उसमें एडिशन ना लेके, सिर्फ एक चीज है उसकी जगह रिप्लेस कर दिया, इट विल बी मेंटेनेंस। वो किस में आ जाएगा? मेंटेनेंस में आ जाएगा, एंड दैट विल बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ आ रही है? फॉर एग्जांपल आपके पास गाड़ी का इंजन है, इंजन रिप्लेस करेंगे, अगर उस इंजन ने वही चीज रिप्लेस की जो पहले से था, स्टेटमेंट कुछ नहीं बताती कि कैपेसिटी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब है इट इज मेंटेनेंस। हम वही इंजन पुराना खराब निकाल के नया डाल दिया, इट इज मेंटेनेंस। पुराने टायर निकाल के नया टायर डाल दिया, मेंटेनेंस। स्क्रीन टूट गई गाड़ी की, नई स्क्रीन लगा दी, मेंटेनेंस। इट विल नॉट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट। अंडरस्टैंड करें इस चीज को? चलिए चलो नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ ऑल्टरिंग इंटीरियर ऑफ न्यू वैन टू इंक्रीज कैरिंग कैपेसिटी, रेवेन्यू। कैपिटल। ध्यान से पढ़ो बेटा, पहले ध्यान से। कॉस्ट ऑफ ऑल्टरिंग इंटीरियर, इंटीरियर ऑल्टर किया किस लिए? टू इंक्रीज कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? तो जब कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, बिकॉज अभी यहाँ पे बताया कि एनी एक्सपेंस व्हिच इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट, ये पॉइंट नंबर 3, इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी और द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन एसेट। फिर नंबर डी आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मोटर टैक्स फॉर न्यू वैन। न्यू वैन का मोटर टैक्स क्या होगा? कैपिटल, फर्स्ट टाइम पे कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ मोटर टैक्स फॉर एग्जिस्टिंग वैन, रेवेन्यू, बिकॉज यू आर मेंटेनिंग दैट। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बिजनेस नेम ऑन न्यू वैन, रेवेन्यू। बेसिकली इट विल बी टर्म्ड एज कैपिटल, बिकॉज जब आप इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे कि इफ you put a name, a business name on a car, so that car
कार विल बी क्या चीज एमसीक्यू में ज्यादातर नहीं थ्योरी में भी आ रहे हैं और अभी तो एक दो पेपर्स में मैंने देखा कि ये डेप्रिसिएशन में भी आ रहे हैं, ठीक है। वो जब डेप्रिसिएशन करेंगे तो देखेंगे कि कैसे बीच में वो ऐड कर रहा है, उसकी कॉस्ट में ऐड कर रहा है। अगर उसमें कोई डेवलपमेंट होती है तो उसकी कॉस्ट में, यानी कि जब आप किसी बिजनेस का नाम किसी गाड़ी पे लिख देंगे तो दैट कार विल बी एफिलिएटेड टू दैट बिजनेस, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे यार ये इसकी एफिलिएशन है तो इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, जबकि एक स्टिकर ही है उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता खास, लेकिन इट विल बी अ कैपिटल एक्सपेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्जिस्टिंग वैन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर आगे हमारे पास द स्टेट द टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, कैपिटल बताना है कि रेवेन्यू बताना है। ब्रेक डाउन वैन परचेज्ड बाय अ गैराज। ब्रेक डाउन वैन क्या होती है? वो वैन जो खराब गाड़ियों में लेके नहीं जाती, ठीक है, टो करके लेके जाती है, दैट इज नोन एज ब्रेक डाउन वैन। अब वो एसेट परचेज करेंगे तो इट विल बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिपेयर्स टू फर्नीचर्स वैन रेवेन्यू, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग अ न्यू मशीन कैपिटल एक्सपेंस, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है कैपिटल एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ हायरिंग रेफ्रिजरेशन प्लांट इन बुचर शॉप कैपिटल और रेवेन्यू, कैपिटल नो रेवेन्यू, हायरिंग हायर किया ना, किराए पे लिया ना, खरीदा तो नहीं, जो किराया भी इसमें डालेंगे तो किराया इज आपको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कब होगा? जब वो परचेज करेंगे। अब आप किसी से कोई चीज गाड़ी किराए पे ले लेते हैं, अबर किराए पे ले ली, करीम किराए पे ले ली, तो क्या हमारी हो जाएगी? ठीक है, हाँ ना, तो आप एक महीने के लिए गाड़ी किराए पे ले लें, उसके बाद भी वापस करनी ना, हमारी तो ना हो। सो कॉस्ट ऑफ हायरिंग समथिंग इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज यू आर नॉट बाइंग इट, ठीक है। अच्छा जी, 12 dozen set of cutlery purchased by catering firm for a new dining room कैपिटल, बिकॉज आपका एसेट परचेज किया, आपकी कटलरी कुछ टाइम के लिए चलेगी, ठीक है। मोटर व्हीकल बॉट फॉर रीसेल बाय अ मोटर डीलर कैपिटल, थोड़ा सा ट्रिकी। हां जी, रेवेन्यू कौन कैपिटल हमने खरीदी रीसेल के लिए, सर कैपिटल होगा, हमने हमने खरीदा है तो यहाँ पे एक चीज सर रेवेन्यू जी सुनो एक सेकंड एवरीबॉडी। स्टॉक हमारे पास होता है, जो भी बिजनेस है, व्हाटएवर द टाइप ऑफ बिजनेस इट इज, इट विल बी हैविंग सम स्टॉक्स। अब जो भी स्टॉक होगा है तो वो हमारा एसेट है, लेकिन इट विल बी टर्म्ड एज रेवेन्यू आइटम। स्टॉक या इन्वेंटरी रेवेन्यू आइटम होगा, क्यों? बिकॉज इट इज बॉट फॉर रीसेल, हमने उसको रीसेल के लिए खरीदा है, हम उसको बेचने के लिए खरीदा है, हमने यूज के लिए नहीं खरीदा उसको। अगर हमारी यूज के लिए होगा इट विल बी कैपिटल एक्सपेंस, बट इफ वी हैव बॉट फॉर रीसेल, हमने उसको बेचने के लिए परचेज किया, तो वो हमारा परचेजेस में आएगा, हमारी इन्वेंट्री में आएगा। एंड इन्वेंट्री क्या होगी हमारे पास? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, याद रख लेना। इन्वेंट्री क्या होगी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज वी हैव बॉट दैट एसेट फॉर रीसेल, हमने उसको रीसेल के लिए परचेज किया, तो इट विल बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, याद रख लेना। द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग पेटेंट राइट्स, पेटेंट राइट्स क्या होता है हमारे पास? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पेटेंट राइट्स होते हैं बिकॉज इफ यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग एंड यू हैव अ पेटेंट फॉर दैट, यानी कि कोई बंदा उसको कॉपी नहीं कर सकता आपकी चीज को। फॉर एग्जांपल कॉपीराइट्स होते हैं, उसी तरह पेटेंट राइट्स होते हैं। कुछ पेटेंट फॉर एग्जांपल जैसा एक मोबाइल है, एक नोकिया के मोबाइल की एक फेस है, एक सैमसंग के मोबाइल का फेस है, एक आईफोन के मोबाइल का फेस है। आपने कभी भी देखा होगा कि कोई नोकिया वाला या सैमसंग वाला आईफोन की बिल्कुल उसी तरह का फेस बना ले, करीब होंगे लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं हो सके। कोका कोला की बॉटल है, कोई भी कंपनी बॉटल बनाएगी बिल्कुल डिफरेंट सी, कुछ करीब हो सकती है बट इट वोंट बी सेम। नाइकी का निशान है, वो उसका पेटेंट राइट है, कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता। सो दीज आर पेटेंट राइट्स जो कि आप अपने लिए परचेज करते हैं, उसके लिए पेमेंट करते हैं ताकि कोई और इन राइट्स को क्लेम ना कर सके। सो इट विल बी अ कैपिटल एक्सपेंस। कॉपीराइट एंड पेटेंट राइट में डिफरेंस? जी कॉपीराइट्स होते हैं कि आप ही वही चीज प्रोड्यूस करेंगे। पेटेंट मैंने एक चीज बना दी, कोई इसको बंदा कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। और कॉपीराइट्स में आपके पास कुछ कंडीशंस भी होती है ना। अब बुक है, कॉपीराइट होती है, बहुत से लोगों को देते हैं प्रिंट करो, वो प्रिंट कर सकते हैं आपके। पेटेंट राइट कोई भी नहीं ले सकता, कॉपीराइट ठीक है, अपना नाम होगा। अच्छा जी, अब आगे देखें कि हमारे पास किसी को एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे देखो, आगे परचेज ऑफ एक्स्ट्रा वैन कैपिटल एक्सपेंडिचर, कॉस्ट ऑफ रीबिल्डिंग वेयरहाउस वॉल्स व्हिच हैज फॉलन डाउन रेवेन्यू बिकॉज़ यू आर मेंटेनिंग। दीवार बनाना तो कैपिटल होता है, लेकिन वी आर
मेंटेनिंग। अगर नई दीवार बनती तो कैपिटल होता, बट वी आर मेंटेनिंग, सो इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। बिल्डिंग एक्सटेंशन टू वेयर कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज आप उसकी एक्सटेंशन कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। चल, पेंटिंग एक्सटेंशन टू द वेयर हाउस व्हेन इट इज फर्स्ट कैपिटल पहली बार एक्सपेंस कर रहे हैं, ठीक है। रीपेंटिंग Revenue. नाउ रेवेन्यू बिकॉज यू आर रीपेंट मेंटेनिंग। रीपेंट का मतलब मेंटेन करना, ठीक है, तो इट इज रेवेन्यू एक्सपेंस। बेटा ध्यान से देखें, कैरेज कॉस्ट ऑन ब्रिक्स ऑफ न्यू वेयर हाउस एक्सटेंशन कैपिटल वैसे तो कैरेज कॉस्ट रेवेन्यू है क्योंकि वो डे टू डे का काम है, लेकिन व्हेन इट इज इन कनेक्शन विद द बिल्डिंग ऑफ समथिंग या कोई एसेट बना रहे हैं तो वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगी। कैरेज कॉस्ट ऑन परचेजेस कैपिटल परचेजेस हमारा रोज का काम है, कभी 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 रोज का काम है, डे टू डे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज फॉर डे टू डे, कैरेज इज आवर डे टू डे काम, डे टू डे का प्रोसीजर हमारा। बाइंग एंड सेलिंग परचेजेस इन्वेंटरी इज आवर डे टू डे, सो कैरेज ऑन परचेजेस इज योर डे टू डे एंड इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। कैरेज कॉस्ट ऑन सेल्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये हमारा डे टू डे का काम है, रोज का काम है। लीगल कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग डेट्स, हम डेटर्स को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, रेवेन्यू वेट करो, हम कैपिटल अपने डेटर्स से पैसे कलेक्ट करते हैं, तो रोज का काम है या कभी कभी रोज का काम है। जो डेटर्स नहीं आते यार मार्केट में तो मसाला receive money from your trade receivables on daily basis और महीने के दिन, एक दो महीने हो जाते हैं तो नहीं होता। तो it is our regular business ना, डेटर से पैसे रिसीव करना is our regular business, so it will be revenue expense। बेटा इधर देखें, लीगल चार्जेस ऑन एक्वायरिंग न्यू प्रीमिसेस फॉर ऑफिस, जिस तरह लीगल चार्जेस, रजिस्ट्री के चार्जेस या कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो इट विल बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब दोबारा देखें, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, रेवेन्यू नहीं कैपिटल अभी है, जब रिन्यू करेंगे तो फिर वो देखें आप फायर इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं ना, ठीक है, कहीं लिखा फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम, नहीं तो if it is an expense तो simply it is a revenue expenditure, it is an expense simply। देखिए जब वो कहेगा यहाँ पे उसने कहा फर्स्ट टाइम तो हमें क्लियर हो गया यार फर्स्ट टाइम है, कैपिटल है, यहाँ पे वो फर्स्ट सेकंड नहीं बता रहा, सिर्फ कह रहा है एक्सपेंस हुआ, तो वो क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इरेक्टिंग न्यू मशीन, यानी कि मशीन को असेंबल किया तो इट विल बी अ कैपिटल एक्सपेंस, इट विल बी अ कैपिटल एक्सपेंस। लास्ट एक्सरसाइज है बेटा, इसको देखिए, repairs to meat slicer revenue, new tires for van revenue because you are maintaining, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। additional shop counter capital additional कोई नई चीज करेगी। renewing sign writing on shop revenue because you are maintaining it, कुछ फर्क पसंद क्लियर होना शुरू होगा। fitting partitions in shop partitions की तो it is a capital क्योंकि नई चीज बन रही है, asset बन रहा है। कैपिटल roof repairs रेवेन्यू डे टू डे का काम। इंस्टॉलिंग थेफ्ट डिटेक्शन कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेजेस ऑफ शॉप असिस्टेंट रेवेन्यू एक्सपेंस है हमारा। कैरेज ऑन रिटर्न आउटवर्ड्स रेवेन्यू बिकॉज़ इट इज बाइंग एंड सेलिंग डे टू डे बिजनेस। न्यू कैश रजिस्टर कैपिटल, नया रजिस्टर, हमने कैश रजिस्टर खाली जो हम कॉपियां रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं ये कैश रजिस्टर ये नहीं होता। कैश रजिस्टर इज बेसिकली शॉप्स पे हम जब परचेजिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे एक मशीन होती है जो टिल मशीन जिसे कहते हैं, जहाँ पे वो कैश रखता है, उसको कैश रजिस्टर बोलते हैं, पैसे ठीक है, जिसमें पैसे जाते हैं टिल मशीन पे बोलते हैं कैश रजिस्टर, ऐसे कर। रिपेयर्स टू ऑफिस से रेवेन्यू इंस्टॉलिंग एक्स्ट्रा टॉयलेट कैपिटल, सर स्कूल में करवाते ठीक है। नाउ लिसन, कैपिटल एक्सपेंस कौन-कौन से होंगे? एनी एक्सपेंस टू बाय फिक्स्ड एसेट, any expense done to increase the value of existing asset, any expense which increases the capital carrying capacity of the production capacity, and any expense done till the asset is in working condition, capital expenditure। normal day to day business के running के जो expense है वो revenue expenditure। normal day to day routine में हमें जो receipts होंगी revenue receipt, और asset को बेचने से जो पैसे आएंगे that will be termed as capital।